So finally we have Himanshu / my bhai. Hi. Hello. Thank you so Hello. much for joining Dear Emotions. Pleasure. I mean, कब से हम प्लान कर रहे हैं कि हम Yeah. पॉडकास्ट करेंगे और Yes, yes. देयर इज सो मच अगेन आपके साथ जहाँ पे सिर्फ Sure. एक एंगल पे बात नहीं हो सकती है. यू आर अ डॉक्टर / माई Yeah. ब्रदर. चाइल्डहुड साथ में बीता है एंड आई Yes. थिंक मैंने जो दूर से रह के ऑब्जर्व किया है तो इतना कुछ है कि यू आर मल्टी टैलेंटेड इन सो मेनी वेज, या फिर कहो कि इतना चीजों में इंटरेस्ट है कि Yeah. समटाइम आई फील लाइक कि हाउ डू यू बैलेंस शौक भी, काम भी, पढ़ाई भी. सो आई Thank डोंट नो you. हाउ डू आई इवन डिस्क्राइब यू, बट आई लीव दैट टू यू. Just tell all this. Just tell all this to my wife. For sure. उनको पता है. And I think before we were starting to shoot this podcast, I think my sister-in-law gave me all the updates कि आज लाइफ के काम क्या नहीं हुए हैं just because you were shooting podcast today. So Yes. that was a great session. So of course, professionally जितना भी काम, you know, we can just tick it off कि हाँ ये काम हो गया, Yeah. वो काम हो गया, लेकिन फिर भी घर के काम is always pending, wife always complaining. So how is life at the moment? Life is good. I am वो कहते हैं ना कि I am sailing in too many boats right now. Professionally तो obviously quite busy रहना भी चाहिए. Then I am president of one of the Rotary clubs this year. So उसका बहुत सारा Rotary का काम चलता रहता है. Then I got my book published this year of ghazals, poetry. So Yes. that is going on. Then Yes. I am, as you said, I am an amateur astronomer. उसके कुछ चलता रहता है. And then हमारे बच्चों का बहुत कुछ चलता रहता है because they are having a lot of interest and lot of things going on, football, karate, music. So we are quite busy, but a good life. A busy life is a good life, and we Yeah. are enjoying the things which we like. So if you are busy doing those activities which you love, so life Correct. अच्छी होती है. Yes, So it's a great way to actually lead your life. Yeah, सिर्फ yeah, एक so- तरफा No. focus I करने cannot से be a should- person ever. I cannot be a person हाँ. ever जो एक ही काम करे. कई लोग होता है ना कि भाई आपको काम में इतना पैशनेट होना चाहिए. You should be passionate about work. Workaholic, बस keep on doing your work. I cannot be a person like that. I have to have my interests. I have to have my family time. So मेरे को work life balance हमेशा से चाहिए था, and I have striven together to get that, and I think I've reached a point where there's a good professional personal life balance right now. But आपको like you know when again going back to your childhood, you know, Yeah. and me being around as your little sister. Yeah. When I see you as like एक बहुत लोग होते हैं टू डू लिस्ट Yeah. बनाते हैं फोकस के लिए. मुझे लगता है आपके दिमाग में ही लिस्ट बनी हुई है कि Yes. ये करना है, ये करना है, ये करना Yeah. है. ठीक है, भूख भी लगी है तो मन का खाना है, which is पोहा is your favorite. हम अभी भी टीज करते हैं आपको इससे क्या अभी भी पोहा आपका फेवरेट स्नैक है. मैरिज के बाद कुछ चीज चेंज हो जाती है. You don't always get what you want, but it's okay. राइट. सो सब्स्टिट्यूट्स क्या हो गए पोहा के? मेरा ऐसा है कि मैं आई कैनॉट हैव वेजिटेबल और पराठा इन द मॉर्निंग. आई नीड समथिंग डिफरेंट. तो पोहा है, नहीं तो साउथ इंडियन हो जाता है, उत्पम. कभी सैंडविचेस हो जाते हैं, कभी ऑमलेट हो गया, हाँ. थिंग्स लाइक दिस. Correct. So you enjoy food, you enjoy reading, you enjoy reading, food, traveling, reading, Yes. writing, and Correct. work तो enjoy करते ही हैं, but ऐसा नहीं है कि उसी में बस डूबे रहना. It's not like डूबे that. रहना है. So for all our viewers, I want you to give out a proper understanding कि आप किस टाइप के डॉक्टर हैं. So I'm an orthopedic surgeon and I'm specializing in joint replacement surgeries mainly. So यहाँ पे एक Sterling Hospital है, one of the quite renowned hospitals at Ahmedabad, India, Gujarat, India. And I'm leading the joint replacement department over there. But I also do a lot of trauma surgeries, arthroscopies, but main focus is joint replacement. And especially उसमें knee replacement is my forte, you can say. So I've done thousands of knee replacement surgeries and other surgeries. And I understand कि आज के टाइम पे of course AI is our best Yeah. friend / assistant. I don't know. Yeah, How do you? So AI is not totally caught up with my profession, but definitely technology is catching up. So recently हमने हमारे फील्ड में if I talk about joint replacement, तो अभी क्या चल रहा है कि robotic surgery आ गई है, which was there in Western countries 5-6 years back I think, and India में it's the latest fad or you can say the latest thing. So we have to be with the times
So I have recently, me and my partner there, we are two surgeons. Yeah. So हमारी Yeah. team है, we work as a team. So Yeah. we got a robot. Yeah. So we have ventured into robotic joint replacements right now. So Correct. that is AI enabled. मतलब वो robot में Right. AI enabled बोल सकते हैं. But during that surgery, joint replacement surgery, AI is not Yeah. that much needed. Not that much needed. So, but you can say कि हम अभी जो technology, जो best technology available है, we are quite up to date, or I am quite in sync with the latest technology available in my field right now. एंड जनरली आपको किस टाइप के पेशेंट्स आपको रोजाना देखने को मिलते हैं, लाइक व्हाट इज योर जनरल See, ऑब्जर्वेशन? because I am in a joint replacement surgery, we get older patients. So इसको geriatric branch बोलते हैं mostly, जिसमें above 60 years के most of the patients आते हैं, क्योंकि उन्हीं के joints घिसते हैं, उन्हीं को arthritis होता है. So we see a lot of patients above 60 years, mainly females. But last 10 years, we have been seeing it now. Younger and younger patients are getting arthritis quite early on in the age. So हमको अब younger patients भी आने लग गए हैं OPD में. But definitely older age group is the main core area. One core subset of population that I see, and other subset is young professionals जो back pain के साथ आते हैं, back pain, neck pain, because they are constantly sitting on the laptop या bed पे, work from home they are doing. So उनको back की problems बहुत ज़्यादा लेती हैं. But of course they don't lead to surgical treatment in most of the cases. उनको we treat them with lifestyle modification, physiotherapy, some medication. And older patient whom I consult a lot of them end up in my operation theater for joint replacement surgeries. Oh wow. So these two subsets are there. Correct. Major cause क्या है for when you see such patients? Age. So as we age, हर organ हमारे body का deteriorates with time. A little earlier in some patient, little later in another, but हम सबके ही joints घिसने वाले हैं, सबके kidney function, heart function, cataract जैसे आ जाता है. So aging is the main cause along with our sedentary lifestyle nowadays. Correct. क्योंकि बैठे रहते हैं, weight gain हो गया है in majority of the patients. So because what has happened significantly in the last few decades, that medical science has done such a huge progress that we are living more. अभी हार्ट खराब है तो आपने बाईपास कर दिया, और यू गॉट अ स्टेंट डन, और वॉल्व चेंज कर दिया, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, इफ योर लिवर इज नॉट वर्किंग, लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है. सो जो ऑर्गन खराब हो रहा है वी आर रिप्लेसिंग इट, और वी आर इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस उसको अच्छा कर दे रहे हैं काफी हद तक. सो पीपल आर लिविंग लॉन्गर नाउ, बट लिविंग लॉन्गर डज नॉट मीन दैट यू आर लिविंग वेल. आपके जो एजिंग के सिम्टम्स हैं वो तो आने ही है, और सबसे ज्यादा वी आर सीइंग आर्थराइटिस because of that, because of ज्यादा लाइफ की वजह से जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम है नी जॉइंट पे, हिप पे, बैक पे, so we are seeing it more and more. So from a doctor perspective, you're saying that we are having a longer life, but living definitely not having a great life. So I'll give you one statistic. At the time of when India got independent in 1947, average lifespan of an Indian was about 37 years or 38 years only, something in that range, as low as that. And currently it is about 75 years. Women live a little bit longer. So there's a huge leap. And world over, we are seeing that. Correct. People are living longer because of good medical facilities. But aging के जो फिर बाकी symptoms होने हैं, medically भी, socially भी, everywhere we'll see the repercussions of that. Correct. But do you see stress as a major role that plays here? Yes. Stress is also. Stress से, what stress does is that it causes inflammation. इन्फ्लामेशन एक तरह से यूं समझ सकते हैं कि जॉइंट में स्वेलिंग आ जाती है, अगर कॉमन भाषा में बात करें तो, एंड दैट लीड्स टू लॉट ऑफ पेन. सो अ पेशेंट हु डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट आर्थराइटिस, एंड स्टेज आर्थराइटिस, बट इफ ही और शी हैज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड ही और शी इज एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ पेन ड्यू टू दैट, माइट एंड अप इन ऑपरेशन थिएटर की मेरे घुटने इतने दुखते हैं. एक्सरे में हमको इतना खराब नहीं लगता है, बट द पेशेंट इज कंप्लेनिंग दैट आई एम नॉट एबल टू वॉक, आई एम नॉट एबल टू स्टैंड, I have to take regular medications. So stress also definitely increases the chances of your joint problems. So obviously as a doctor you can say that lifestyle can be one of the issues, stress can be another issue, and then multiple... It is the major issue. It is the issue. Stress is the major issue. Yeah. Nowadays. And so now beyond just, a doctor who is diagnosing a certain issue, I want to know कि आप क्या सोचते हो कि जब stress आता है किसी को, it can be, obviously you don't understand and you may not end up talking to a No. We never end up. Because how much time will I consult? I'll just consult the patient 10 minutes, 15 minutes. We don't have the time to go in the patient's personal life.
Correct. So we can imagine that this person might be undergoing a lot of stress, but that's not my job. Correct. My job as orthopedic surgeon is to treat the ailment. Correct. Then the patient might go to a psychiatrist or a psychologist or a therapist. They might understand it better, but we don't have the time, nor the inclination, nor the expertise to treat it. But agar through this podcast, if you can give something valuable to all the patients or to the people who are listening, ki as a doctor, of course, maybe 5 to 10 minutes max you have to look at the issue, ki this is the issue, this is the treatment I can give you, ye medicines hai, ye surgery I can suggest you, and then you just do the particular job and done and dusted. But what do you think beyond in your head कि ये बंदे को या इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, ये स्ट्रेस हो सकता है, यू डोंट नो द एग्जैक्ट स्ट्रेस, व्हाट लाइफस्टाइल चेंजेस दैट दे कैन ब्रिंग सो दैट ये इश्यूज कम होने लगे लाइफ में? मे बी two things. You have to have an active lifestyle. Means a person should walk at least 25 to 30 minutes a day at least. अगर कुछ और नहीं कर सकते आप तो वॉकिंग करिए या स्विमिंग करिए या साइकिलिंग करिए. So these 3 exercises से joints भी are preserved. उससे क्या होता है, good hormones are released in your body, dopamine, and there are certain other hormones. You remain happy, obviously. और जो दूसरे physical effects हैं, your heart will be मतलब in a better condition, fat नहीं जमा होगा, blood circulation बढ़ेगा, all those things are there. Joints आपके अच्छे रहेंगे, so constantly उसका pain and जो उसका stress होता है, so it's a never ending cycle. Once a patient enters that stage of arthritis when there is a severe pain, तो पेन होता है, उससे उसको स्ट्रेस होता है, दवाई लेते हैं, उससे स्ट्रेस होता है, वॉकिंग नहीं कर पा रहे, उससे स्ट्रेस होता है. दिस गोज ऑन एंड ऑन. सो व्हाट आई टेल द पेशेंट, इधर यू गेट द सर्जरी डन, अगर बहुत खराब है यू गेट द सर्जरी डन, गेट ओके, बी ओके, स्टार्ट वॉकिंग, स्टार्ट लिविंग योर लाइफ. अगर हमको वो भी नहीं करना है या उतनी एंड स्टेज नहीं आई है, एटलीस्ट स्टार्ट वॉकिंग, लर्न सम एक्सरसाइजेस, डू फिजियोथेरेपी, बी एन एक्टिव पर्सन. तो उससे आपकी मसल्स भी अच्छी रहेंगी, बॉडी मास भी अच्छा रहेगा, ऑस्टियोपोरोसिस यानी एज के साथ जो बोन्स वीक होने लग जाती हैं वो भी कम होएगा. You will be a healthier person, happier person too, क्योंकि इनसे गुड हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, जैसे मैंने बोला. अगर ओल्डर पर्सन है और कोई भी आदमी एटलीस्ट वॉक तो कर ही सकता है. Correct. सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, इजियर डन. और सेकेंडली जो हमेशा हमने घर में भी देखा है, मैं भी फॉलो करता हूँ, यू हैव टू हैव सम हॉबीज और इंटरेस्ट और पैशंस, जो मेरे तो कुछ ज्यादा ही है, वो ना भी हो तो उससे भी आप स्ट्रेस आया, आपको अपने वर्क तो करना ही है, फैमिली को भी टाइम देना है, लेकिन स्ट्रेस को बीट करने के लिए इफ यू हैव सम इंटरेस्ट, रीडिंग, लिसनिंग म्यूजिक, ट्रैवलिंग, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, जो भी आपके इंटरेस्ट हो, सम क्रिएटिव इंटरेस्ट. आई वोंट से दिन भर बैठ के ओटीटी देखते रहना, विच इज इन अ सेंस आल्सो अ हॉबी, यू कैन से, अच्छा लगता है, बट वो एक लेजी हॉबी है और आप किसी दूसरे का क्रिएशन देख रहे हो. ये दो चीजें अगर हम करेंगे तो यू कैन बीट स्ट्रेस टू अ ग्रेट डिग्री, आई थिंक. करेक्ट. और काफी सारी फिर जो प्रॉब्लम्स हम बॉडी में फील करते हैं वो कुछ परसेंटेज तक ऑफ कोर्स वो कम हो सकती है. डेफिनेटली. और एंड सी दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोग्रेस. व्हाट हैपेंस, लोग बहुत आते हैं मेरे पास, मैंने 2 महीना वॉकिंग कर ली, अब वापस से दर्द होने लग गया. सो व्हेन आई आस्क देम कि अभी कर रहे हो, नहीं वो तो 2 महीना करी थी. So this is a continuous process. You have to keep on doing these things. ठीक है, the degree might vary. आप किसी दिन बिजी हैं ज्यादा तो आपने 15 मिनट कर लिया, किसी दिन ज्यादा टाइम है तो you might give it 1 hour or so. But if you do it continuously, then you mentally also you'll be happy and physically also you'll be in a better condition. So when we are talking about hobbies and interest here, give me 5 books maybe that you recommend people to read. Okay, but fiction, I read fiction basically. That's fine. Go ahead with that. So very difficult to say because ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इतनी हजारों बुक्स हैं और सब अच्छी हैं, मतलब it is very very difficult. So your top 5 maybe. See, first तो है, हमेशा ही first रही है, that is 1984 by George Orwell. और written in near London only. George Orwell was born in India, Motihari, Bihar. His father was working in Indian Army when India was under Great Britain. But he shifted to London, to Britain basically when he was 5 years old. So वो एक dystopian book है, हालांकि it's not a very happy book, but वो मेरी all time favorite book and I recommend to everybody. 1984 by George Orwell. But if you ask me कि अगर किसी नए रीडर को मेरे को कहना हो कि मेरे को कई लोग आते हैं, because I run a small book club also. And people know me as a bibliophile, और मेरा छोटा YouTube भी चलता है बुक्स के ऊपर. Very infrequently I post. But अगर कोई मेरे से ये पूछे कि which is the second book on my list, कि मेरे को रीडिंग करने की इच्छा तो है बट मैं घबरा जाता हूँ या घबरा जाती हूँ, इतनी हैवी बुक होगी, उसकी लैंग्वेज से. सी सम मेनी पीपल आर
अफ्रेड कि ये बहुत हैवी बुक होगी, मेरे को इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी. तो सेकंड बुक जो मेरी लिस्ट में है, आई वुड रिकमेंड टू एनी न्यू रीडर, एंड दैट इज टू किल अ मॉकिंग बर्ड बाय हार्पर ली. Okay. टू किल अ मॉकिंग, एंड व्हाई, उसका रीजन है. उसका रीजन ये है कि दिस बुक इज बीइंग नरेटेड इन द वॉइस ऑफ अ 9-year-old गर्ल. Ooh, nice. तो एक 9-year-old गर्ल अगर बोलेगी, नरेट करेगी, तो आप सोच सकते हो कि इसकी लैंग्वेज कैसी होगी. वेरी सिंपल. लेकिन उस जब व्हेन यू रीड इट, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन एक्चुअली सी अ लॉट ऑफ बिग थिंग्स आर गोइंग अराउंड हर, लॉट ऑफ बिग इश्यूज आर बीइंग टैकल्ड अराउंड हर. Alabama 1930s में ये बुक बेस्ड है, एंड इट्स अ मेजरली वाइट विलेज इन अमेरिका, जहां पे अ ब्लैक मैन हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ असॉल्टिंग अ वाइट लेडी. तो इसकी नजरों से वो देख रही है कि क्या हो रहा है शहर में, कैसे रेसिज्म चल रहा है, कैसे लोग फादर के अगेंस्ट हो रहे हैं. इट्स अ ब्यूटीफुल बुक, टू किल अ मॉकिंग बर्ड. एंड ग्रेट बुक्स दे ऑलवेज रिमेन रेलेवेंट एक्चुअली. True. तो जो 1930s में टेंशन थे वो आज भी रेलेवेंट है. थर्ड बुक आई वुड से ग्रेप्स ऑफ रेथ बाय जॉन स्टीनबैक. 4 और 5 वेरी डिफिकल्ट टू से. इफ आई हैव टू से एक अच्छी बुक अगर मैं कहूं जो एवरीवन वुड लव, दैट इज ऑल द लाइट वी कैन नॉट सी बाय एंथोनी डॉर. ब्यूटीफुल बुक. अगर आपको कोई ब्यूटीफुल बुक पढ़नी हो ना, विच विल मेक यू फील हैप्पी, सो ऑल द लाइट यू कैन नॉट सी. मतलब हिस्टोरिकल फिक्शन है बेस्ड ऑन वर्ल्ड वॉर 2. कोई एंड पूछेगा वेरी कि इतने खुश क्यों हो, लाइक क्या बताएं, ये बुक पढ़ के आए हैं, है ना? It's more like that. Yes. Fifth one is, I think, something by Graham Greene. I think, I consider Graham Greene as one of the best novelists of all times. So Graham Greene की बहुत सारी बुक मैंने पढ़ी, but Power and Glory by Graham Greene, वो बहुत ही हार्ड हिटिंग बुक है. वेरी वेरी शॉर्ट बुक. उसमें वो मैक्सिको में बेस्ड है. जब स्पेनिश कॉन्करर्स वहां पे आ गए थे, एक प्रीस्ट भाग रहा है बचते हुए. काफी अच्छी बुक है पावर एंड ग्लोरी. सो आई वुड थिंक दीज आर द टॉप 5 बुक. हालांकि बहुत सारे कंटेंडर्स हैं उसके, बट अगर मेरे दिमाग में एकदम से जो बोलते हुए दिमाग में आ रही है, सो दीज आर द टॉप 5 बुक्स आई वुड रिकमेंड. Yeah. Amazing. And recently you also launched your own book because आप गजल लिखते हो. Tell us more about कि how this personality of being a doctor, fast-paced life, and then suddenly switching to a different, जो इमोशन होता है ना एक गजल का, like listening to songs and reading books is different, but जब आप एक गजल लिखते हो तब वहां पे एक अलग ही इमोशन रहता होगा. ये बहुत सारे मिसकंसेप्शन है इसके अंदर, बहुत सारे. मतलब यू हैव सेड एवरीथिंग रॉन्ग एक्चुअली. सी डॉक्टर्स एंड गजल, ये तो बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि डॉक्टर है तो क्या हो गया, मींस डॉक्टर्स तो एक्चुअली आप देखोगे तो हर फील्ड में है. मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट क्या होता है कि अगर आप इंटेलिजेंट हो थोड़े भी, आईक्यू आपका अच्छा है, तो व्हाट हैपेंस, सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो हमारी होती है ब्रेन, सो देयर आर डिफरेंट सेंटर्स इन द ब्रेन. एक आई सेंटर है जो आपको सुनने में, देखने में मदद कर रहा है. एक ऑडियो सेंटर है. सो जो लोग आर रादर मोर इंटेलिजेंट और कई एक्टिविटीज होते हैं, उनके सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बहुत सारे सेंटर्स एक्टिव रहते हैं. सो दीज पीपल आर मोर चांसेस कि वो काफी सारी चीजें करते होंगे. तो ये तो कोई बात ही नहीं कि डॉक्टर्स ये नहीं कर सकते, डॉक्टर सब कुछ कर सकते हैं. No, I meant was कि जब एक नहीं, डॉक्टर पर आपने तुमने नहीं पूछा, लेकिन मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि डॉक्टर और गजल इनका तो कोई वही नहीं है. तो मैंने कहा इंसान ही है ना डॉक्टर, तो वो कोई बात नहीं है. so true. नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि हम as being normal ये people, ब्रैकेट हम सबको ब्रैकेट कर देते हैं, जनरलाइज करते हैं, जैसे टेंडेंसी की ये है तो यही होगा, डॉक्टर होगा तो यही होगा, ऐसा ही होगा, which is not true actually. But I remember one time when Devashish, when he was trying his hard to get into IIT, and I think उनको अपना एक पसंद का रैंक नहीं मिला था, and he was, well, again, I was a little sister around, you know, with my 2 elder brothers, so मेरे को ये चीज कही नहीं गई थी कि ओ या यू नो व्हाट, मेरे साथ खेलो मत आज, मैं थोड़ा सा, या आई कांट इंटरेक्ट विद यू, मेरा मूड ऑफ है, ऐसा कोई वर्बली नहीं कहा गया था, बट यू कैन सेंस. नाउ देन आई सॉ वन मॉर्निंग कि आपने उनके लिए कुछ लाइनें लिखी थी जस्ट टू बूस्ट हिज मोरल, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रिमेंबर कि अच्छा आप राइटिंग में भी हो. बट आई हैड दैट अर्ज टू राइट समथिंग, जो अर्ज एक अंदर की को एक्सप्रेस योरसेल्फ, वो थी मेरे में हमेशा से ही. फादर मेरे को बोलते रहे कि तुमको आता है आइडिया, बट यू डोंट नो द क्राफ्ट एक्चुअली. सी एक मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, विच आई डोंट नो योर लिसनर्स नो, कि एनी पोएट्री राइटिंग इज ऑल्सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, क्योंकि आपको उसमें इमोशंस भी चाहिए और इंटेलिजेंस भी चाहिए, यानी डिसिप्लिन भी चाहिए. व्हाई आई एम सेइंग, कई लोगों को लगता है कि अरे बस जज्बात ही लिखने हैं इसके अंदर, तो
कहीं आज मैं दुखी हूं तो मैंने दुखी वाली कविता लिख दी या दुखी वाली गजल लिख दी, आज खुश हैं तो ये लिख दिया। और देर आर स्पेसिफिक पैटर्न्स, 30 ऑड पैटर्न्स, उसी में आपको लिखना है, आपके जो मन में आ जाए वो नहीं लिख देना है। करेक्ट। उसमें फिर आपको राइमिंग भी करनी है, काफिया बोलते हैं, राइमिंग करनी है। राइमिंग के अलावा आई डोंट नो, मैं शायद ज्यादा बोल रहा हूँ, बट एक रदीफ भी एक चीज होती है गजल में, जो दुनिया की किसी पोएट्री में नहीं है। दुनिया की किसी पोएट्री में रदीफ नहीं है। राइमिंग तो सब में है। रदीफ क्या होता है? जैसे मैं मेरा ही एक दो लेके बताता यस, हूँ। टेल अस मोर अबाउट योर बुक, कि आपने जो बुक अभी लॉन्च की रिसेंटली, हाँ, उसमें से कुछ में भी। पढ़कर किताब इतना समझदार हो गया, पढ़कर किताब इतना समझदार हो गया, खुद दोस्तों के बीच में दीवार हो गया। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी भी दोस्तों को पसंद नहीं है, बहुत नॉलेजेबल, जो बार बार अपना ज्ञान, तो ये बात ये कही जा सकती है। वो डिवीजन हो जाता है एक तरीके का। यू स्टैंड टॉल इफ यू आर वेरी इंटेलिजेंट, इफ यू आर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी कह सकते हैं, तो भी दोस्त आपसे थोड़ा दूर हो जाते हैं। आप एक यू आर अ वॉल, समझ रहे। तो ये शेर में जैसा था कि पढ़कर किताब मैं इतना समझदार हो गया, खुद दोस्तों के बीच में दीवार हो गया। अब इसमें समझदार और दीवार ये राइमिंग वर्ड्स हैं। समझदार, दीवार। इसका अगला शेर ऐसा है कि हर वक्त जो सभी को सिखाया किए यहां, हर वक्त जो सभी को सिखाया किए यहां, उनको सिखाने का मैं खतावार हो गया। यानी आप भी जो चल रहा है ना कि सोशल मीडिया पे कुछ भी लोग ज्ञान बांट रहे, आप उनको बोल दो कि नहीं ये गलत है, आप देख लो गूगल में, बुरा मान जाएंगे। मतलब जो ज्ञानी लोग बहुत घूम रहे हैं। तो ये गजल में क्या बात हो रही है? पढ़ने लिखने की, जो आजकल फेक न्यूज चल रही है या अपन जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं, उस पर मैंने एक गजल कही है। अब आप भी सोच सकते हैं कि गजल में ये बात करी जा सकती है। लोगों को पता ही नहीं है कि गजल में आप कोई भी बात कह सकते हो, सिर्फ वो क्राफ्ट में हो और अच्छी लगे, वल्गर ना हो, अच्छे से कही जाए। ऑब्वियसली बड़े जो शायर हैं वो और अच्छी लिखते हैं, हम जैसे छोटे शायर अभी सीख रहे हैं। तो अब इसमें जैसे था कि पढ़कर किताब में समझदार हो गया, खुद दोस्तों के बीच में दीवार हो गया, सभी को जो सिखाया किया उनको पढ़ाने का, उनको सिखाने का मैं खतावार हो गया। तो समझदार, दीवार, खतावार, ये राइमिंग वर्ड्स हैं जो हर शेर के एंड में आएंगे, जिस तरह राइम होती है, जिसको हम तुक बोलते हैं हिंदी के अंदर, इंग्लिश में राइम बोलते हैं। लेकिन एंड में देखो क्या आ रहा है, समझदार हो गया, खतावार हो गया। तो ये जो हो गया है, जो एक फ्रेज है, कांस्टेंट फ्रेज जो शेर के एंड में आ रहा है, उसको रदीफ बोलते हैं। तो और आपका प्रॉपर प्रोसेस, इट्स अ वेरी क्रिएटिव प्रोसेस। आपको न सिर्फ इमोशन सोचने हैं, और अभी तो मैंने सब बहर तो बताई नहीं है। 2112 का एक स्पेसिफिक मीटर है इसके अंदर, जो हर लाइन में, हर वर्ड में आपको बिठाने। तो गजल लिखना या पोइट्री लिखना बहुत मैकेनिकल काम भी है। लोग सोचते हैं सिर्फ इमोशनल काम है। 99% जनता को यही पता नहीं है कि गजल लिखते कैसे हैं, या पोइट्री में छंद, हिंदी कविता का मतलब छंद क्या होता है, मात्रा का वजन क्या होता है। मैंने भी ये सब बातें अभी सीखी कुछ सालों पहले ही, एंड आई एम ऑल्सो लर्निंग दैट। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे आ गया है, ये कांस्टेंट प्रोसेस है। लेकिन ये मेरे को फादर बोल रहे थे कब से कि तुम सीखो, तुम्हारे थॉट है, यू नो हाउ टू राइट अ गजल, बट जब तक तुम बहर में, मीटर में नहीं लिखोगे, वो मुकम्मल ही नहीं है, मतलब वो पब्लिश नहीं हो सकती है, आपको वो गजल मानी ही नहीं जाएगी। तो जैसे तुम बोलते थे ना, बिजी लाइफ रहती है, मैं भी कहाँ सीखे यार। और एक अपना जो एक फ्री थिंकिंग होती है कि कहीं भी कुछ भी लिख दिया, इतने बंधनों में क्यों लिखना है। लेकिन जब कोविड आया फिर सडनली, तो कोविड में मुझे टाइम मिला, जब घर बैठे हुए थे, काम में कोई घुटने पे बदलवा नहीं रहा था, नोबडी वाज ट्रैवलिंग एनीवेयर, तो हमारा तो काम ही ठप हो गया था पूरी तरीके से, बिकॉज इमरजेंसी सर्जरी नहीं है हमारी, जॉइंट रिप्लेसमेंट। सो डिप्रेशन भी आ गया था, हर तरफ तबाही है, मौत है, सब है। सो आई यूटिलाइज दैट टाइम टू लर्न द क्राफ्ट। तब मैंने ये बहर में लिखना, समझना, वजन क्या होता है, मीटर क्या बहर होती है, तब मैंने उस कोविड के टाइम को यूटिलाइज किया। एंड देन मैंने थोड़ा धीरे धीरे बहर में, इट इज डिफिकल्ट क्योंकि आपको इसी में लिखना है, अपना इमोशन इसी तरीके से कहना है। तो धीरे धीरे फिर लिखना चालू किया, करते करते आई एम गेटिंग बेटर डे बाय डे, आई थिंक सो। तो फिर वो पहली किताब ये समंदर सिखाता रहा, अभी 1 महीने पहले ही समंदर सिखाता रहा करके मेरा पहला गजल संग्रह है। तो ये अभी लॉन्च हुआ है, एंड दिस हैज बीन पब्लिश्ड बाय राजस्थान साहित्य अकेदमी ने पब्लिश करवाया है। नाइस, थैंकफुल। और क्या इसको अगर कोई व्यूअर खरीदना चाहे तो Amazon से खरीद सकता है? या सो आई एम जस्ट गोइंग, ये अभी जस्ट 2-3 वीक्स पहले ही लॉन्च हुआ है। सो आई एम वेरी सून आई एम गोइंग टू यू नो पब्लिश इट ऑन Kindle एंड ऑल अदर एप्स। तो वहां से वो ले सकेंगे। आई विल गिव यू द लिंक, 2-3 दिन में हो जाएगा वो
ई बुक Done. की तो for तरीके sure से। हम हमारे podcast के Sure, details में we will put the Definitely. details out. If anybody wants to buy, they can buy from there. Yeah, definitely. So ghazal writing and poetry writing is also a very cerebral thing, not just an Correct. emotional thing. So ये समझना चाहिए, और इसलिए मेरे को वो काफी चैलेंजिंग लगता है, इसलिए उसमें हाँ. इंटरेस्ट आता है हाँ. कि सिर्फ इमोशन नहीं है, आपको आपका ये मेहनत भी करनी है. इट्स वेरी क्रूअल थिंग ऑल्सो समटाइम. बहुत मुश्किल होता है Correct. लिखना कई हाँ. बार. क्योंकि हम कई बार जो लोग जो नहीं जानते क्राफ्ट के बारे में वो ऑलवेज Yeah. यही सोचेंगे कि इट्स अबाउट इमोशंस. आज मैं जैसा फील कर रहा हूँ वैसा मैं ये मेरा ज्यादातर इमोशन लोगों है को यही बह के. लगता है. लेकिन सभी लाइफ को का रियल स्ट्रगलिंग फेज कभी रहा है? सबसे ज्यादा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही रहा है. पीएमटी की जब तैयारी कर रहे हैं, यू नो, आई वेंट टू कोटा, तब अनसर्टेनिटी लाइफ में Correct. क्या होगा, क्योंकि एक एग्जाम आपको पास करना है, वो नहीं हुआ तो लाइफ का डायरेक्शन बिल्कुल अलग है, और हो गया तो लाइफ का डायरेक्शन. नाउ इन रिट्रोस्पेक्ट, नाउ व्हेन आई एम 45 ईयर ओल्ड, आई कैन से क्या, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एवरीबॉडी इज डूइंग वेल. मेरे जो क्लासमेट का नहीं हुआ मेडिकल एग्जाम में, वो भी प्रोबेबली मच बेटर देन मी. लेकिन एज अ 19 ईयर ओल्ड, एज अ 18 ईयर ओल्ड, मेरे लिए वो स्ट्रेसफुल टाइम था, क्योंकि वो एक थ्रेशोल्ड मेरे को पार करनी ही है. नहीं करूंगा तो पता नहीं कहाँ जाएगी जिंदगी, मेडिकल में आना है. फिर उसके बाद जब सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग टाइम, तो आई थिंक इट वाज व्हेन वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन. क्योंकि तब यू आर 24-5 ईयर ओल्ड, अभी आपका एमबीबीएस, तो बाकी दो दोस्त मेरे इंजीनियरिंग करके कमाने भी लग गए, एंड मैं घर पे बैठा हूँ, प्री पीजी की तैयारी कर रहा हूँ, उसमें पीजी मिलेगी. फॉर डॉक्टर्स इट इज वेरी लॉन्ग प्रोसेस. ट्रू. 30 इयर्स तक तो मेरी स्टडी चलती रही, देन मैं दुनिया में आया, दुनियादारी में आया. फिर सर्जिकल लाइन में इसमें और टाइम लगता है, क्योंकि आपसे फिजिशियन से तो कोई दवाई लिखा के ले जाता, कोई आपसे सर्जरी नहीं कराता यंग आदमी से. सो उसमें सेटल होना और बहुत मुश्किल काम है. मतलब जो मेहनत जिंदगी में करना 40s के आसपास, उसके फ्रूट्स हमको मिलना स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं. और कई बार लोग ये सोचते हैं कि अरे पढ़ाई कर लो, कॉलेज चले गए, उसके बाद तुम्हारी इतने लाख की सैलरी होगी. हम भी सोचते थे. सो वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई थी. बट बिकॉज आई एम अ सन ऑफ अ सर्जन माई सेल्फ, सो आई न्यू कि ऐसा नहीं होने वाला है. एंड आपको मिलते हैं उसके रिवॉर्ड, एंड फिर जिंदगी भर मिलते रहता है. सी, सर्जन का नाम जिंदगी भर बड़ा होता रहता है, जैसे जैसे, और कभी खत्म नहीं होता है काम. सो द मोर यू एज, यू आर लाइक वाइन, यू नो, एजिंग लाइक अ वाइन. मतलब एक मजेदार बात बताता हूँ मैं, जस्ट आउट, कि मैं जब मैं पास हो गया, पीजी कर ली मैंने, सो मैं मेरे पीजी टीचर के पाँव वाँव छूने, आशीर्वाद लेने गया, तो उन्होंने मेरे से बोला, हिमांशु, हु डू यू थिंक इज अ गुड सर्जन? तो मैंने वही अपने क्लीशेड बातें की, सर शुड बी एथिकल, शुड फॉलो साइंटिफिक प्रिंसिपल, शुड बी कंपैशनेट दुनिया में, मतलब नॉट ग्रीडी मनी के. बोले नहीं नहीं नहीं, अ गुड सर्जन इज बॉल्ड, मोटा होता है, सफेद बाल होते हैं. सो व्हाट यू वाज ट्राइंग टू टेल मी कि तुम्हें इतनी जल्दी लोग नहीं मानेंगे कोई अच्छा सर्जन, जब तक तुम बूढ़े गंजे नहीं हो जाओगे ना. ओल्ड लोगों को लोग अच्छा सर्जन मानते हैं कि इसको एक्सपीरियंस होगा. सो दैट इज आवर स्ट्रगल एक्चुअली. तो कई बार ऐसा सर्टेन लुक इफ यू आर गेटिंग, यू विल बी हैप्पी कि हाँ हाँ मैं सही जा रहा हूँ. मेरे ये व्हाइट हेयर, आई थिंक यू कैन सी, मैं इनको कलर नहीं करता हूँ. कितने लोग बोलते हैं इसको बचा बचा के, आई एम प्रिजर्विंग दिस व्हाइट हेयर, कि इनको को थोड़ा अभी तो थोड़ा फिर भी दिख रही है कि नहीं. या सो नाउ आई एम राइट नाउ मैं 45, तो ठीक है. व्हेन आई वाज 38 39, थोड़ा वेट भी कम था, इतने सफेद बाल भी नहीं थे, तो लोग मेरे को काफी यंग ही समझते थे. वो नहीं आते थे सर्जरी कराने के लिए, या उनको लगता था ये तो दुबला पतला लड़का है, इसको क्या आता होगा. आई हैव एक्चुअली फेस्ड दिस अ लॉट ऑफ टाइम. पीएमटी पास करके निकले, अभी रुक जाओ. सो वो लोगों का, और वो हर किसी को होता है. मतलब अपने को भी मुझे अपने घर में सर्जरी करानी हो, यार सबसे बड़ा सर्जन कौन है, सबसे नामी एक्सपीरियंस वाला सर्जन कौन है. सो दैट इज अ वेरी नेचुरल इमोशन इन एवरीवन, आई अंडरस्टैंड दैट. सो हमारी लाइफ की स्ट्रगल ये अलग ही रहती है डॉक्टरों की. हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं है कि बस एग्जाम पास कर लिया और अच्छा कॉलेज मिल गया, उसके बाद आप सेट हो. आपको भी लगते हैं टाइम टू सेटल इन योर जॉब. तब से तो शुरू होती है तकलीफें. हाँ. पर डॉक्टर्स की पढ़ाई नेवर एंडिंग है. सो एग्जाम्पल, जब आप सर्जन बने होगे, जब आपने पढ़ाई कर ली, तब तो ऑब्वियसली एआई वाज नॉट इवन इन नियर बाय. हम कई बात भी नहीं करते थे 20 साल 30 साल पहले. लेकिन जब आज आप काम कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली आई एम अज्यूमिंग कि आपके भी ऑपरेशन थिएटर में रोबोट या कुछ एआई का काम है. रोबोट है बहुत ज्यादा नहीं, एज आई सेड, एआई का. बट हमारे क्या है, सी व्हाट हैपेंस कि अभी जब जैसे मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कर रहा हूँ, अब इतने थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स कर लिए कि वो इंस्टिंक्टिवली हो गया है. वी डोंट नीड टू रीड इट एवरी डे. वो रिपीटेड, इसीलिए आज के दुनिया का वर्ल्ड सुपर स्पेशलिस्ट का है, कि एक ही काम में सुपर स्पेशलिस्ट, जैसे नी रिप्लेसमेंट तो या जॉइंट रिप्लेसमेंट, तो वही काम हम करे जा रहे हैं. यू कैन वेक मी अप इन द नाइट एट 3 AM की नी रिप्लेसमेंट करना है, तो आई विल गो एंड इजीली डू इट. इट इज एट दैट इंस्टिंक्टिव लेवल. सो रिपीटेड प्रैक्टिस. तो इतना अब हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है. लेकिन ऑब्वियसली
नई टेक्नोलॉजीज क्या आ रही हैं धीरे धीरे, दे टेक टाइम. सो वी आर ऑलवेज अवेयर व्हाट इज इन द वोग राइट नाउ. कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते रहते हैं, जर्नल्स आते रहते हैं, बट वो इंटेंसिव पढ़ाई Yeah. नहीं है अभी. हाँ, correct. It's a slow and gradual process. Correct. But as being a doctor, so my question again, I'm not doubting doctor के IQ को या फिर उनके interests को. My question is, काम है, it's a demanding job, Yeah. Very it, demanding. you spend so many hours in hospital and then balancing घर and then काम. इन सब में आप अपने गजल के लिए टाइम कब निकालते हो? I can multitask easily. I don't know whether you can understand it or not, but I can actually multitask that. Yeah, कोई of course. पेशेंट देख लिया बीच में, फिर वापस अपन ने लिखना चालू कर दिया, सर्जरी करके आ गए, फिर मोबाइल पे लिखना चालू कर दिया. सो आई कैन कीप ऑन डूइंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो मैं उसको टाइम को यूटिलाइज कर लेता हूँ. देन आई ट्रेवल अ लॉट, मतलब मेरी ओपीडीज होती हैं इन डिफरेंट प्लेसेस, तो उस समय मैं लिखता हूँ. मैं आई डोंट वॉच ओटीटीज. सी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ क्रिएटिव लोगों को, आपको ओटीटीज से बच के रहना है. क्योंकि आपने एक बार वो चालू कर दी बिंज वॉचिंग, देन यू आर ऑलवेज सीइंग समबडी एल्सेस क्रिएटिविटी. बाकी अगर मैं कुछ देखता भी हूँ तो छोटा सा कोई एपिसोड देख लिया फ्रेंड्स का, साइनफील्ड का, जो 20-22 मिनट्स में खत्म हो जाता है, विच विल नॉट लीड टू बिंज वॉचिंग. करेक्ट. तो वो सबसे अपन ने दूर रखा है अपने आप को. सो ऑफ कोर्स वी अंडरस्टूड कि पोइट्री या गजल आपकी लाइफ का बहुत मेजर पार्ट है विथ यू बीइंग अ प्रोफेशनल डॉक्टर. आपको क्या ऐसा लगने लगा है कि कभी कभार आप पेशेंट को और अच्छे समझने लगे हैं बिकॉज यू हैव दिस क्रिएटिव माइंडसेट आल्सो? टू सर्टेन एक्सटेंट यस. अ राइटर और एनी क्रिएटिव पर्सन इज मच मोर, उसका EQ ज्यादा होता है, इमोशनल क्वोशंट, देन अदर पीपल. तभी तो आप कुछ चीज क्रिएट करोगे ना. व्हेन यू विल सी लॉट ऑफ, यू विल ऑब्जर्व परहैप्स अ लिटिल मोर देन अदर्स. कोई भी गजल लिखनी है, पोएट्री कुछ भी लिखना है, तो आपको बातें तो कहीं से जिंदगी से ही लेके आनी पड़ेंगी, कोई इंस्टेंसेस कहीं. तो आई सी अ लॉट ऑफ पेशेंट, उनके पता भी चलता है कि क्या चल रहा है, अंडरस्टैंड, उनसे कई बार थॉट भी आ जाते हैं. ओनली थिंग इज कि उनको हम ज्यादा बोल नहीं सकता हूं मैं कि ऐसा करो वैसा करो, बीइंग एन ऑर्थोपेडिक सर्जन. करेक्ट. I might understand what is going on. मैं गलत कंसल्टेंसी That's not के लिए तो my नहीं आ गया. job. Yeah, that's not my job. And जो जिसका जॉब है उसी को करना चाहिए. Correct. I can understand, but I cannot give resolution perhaps to their satisfaction. हर चीज को दुनिया में लेयर्स की तरह समझने की कोशिश करनी चाहिए हमको. कोई इंसान, जैसे मैंने पहले बोला कि जनरलाइज नहीं होता कि ये तो ऐसा ही है. आजकल ये बहुत चल रहा है यार, ये कम्युनिटी तो ऐसी ही है, ये कंट्री की नेशनलिटी तो ऐसी ही है, मतलब इन जनरल हम बोल देते हैं ये तो ऐसे हैं लोग. कोई भी. सो हर इंसान में अच्छी बुराई या लेयर्स होती है. हर कोई घटना हुई, उसमें कई तरह के एंगल्स निकलते हैं. कोई भी चीज लाइफ की हो, सो वो परफेक्ट कभी नहीं होती. देयर आर लॉट्स ऑफ शेड्स, और इसी शेड्स में क्रिएटिव लोग खेलते हैं हमेशा. सो लाइफ इज नॉट व्हाइट और ब्लैक, इट्स ऑलवेज देयर आर शेड्स ऑफ ग्रे. अगर आपको अच्छा इंसान भी बनना है, एक इंटेलेक्चुअल इंसान बनना है, समझना है, और फिर कुछ क्रिएटिविटी करनी है, और बुक्स में भी यही मिलता है. इसलिए हम फिक्शन पसंद करते हैं. देखो, मैं गजल लिखता हूँ लेकिन मैं इंग्लिश फिक्शन पढ़ता हूँ, मतलब ये दो अलग वो हैं. और ये दोनों इतने अलग हैं. गजल में आपको दो ही लाइन में पूरी बात कह देनी है, और फिक्शन में एक समुद्र है, आप 1000 पेज का नॉवल भी पढ़ सकते हो. तो दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट है, बट दोनों का वही है कि वो आपको किताब, मैं जब किताब खोलता हूँ तो आई डोंट नो कि ये मैं कहाँ ले जाएगी, मेरे को किस एरा में ले जाएगी, किस इमोशन पे ले जाएगी, क्या इंस्टेंसेस होंगे. तो यही मजा है, टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर. I mean, this podcast is so interesting. As a doctor, I wanted to hear more perspective on, patients को लेकर, या फिर how do you balance your emotional, being more emotional available to your profession and also to your ghazal writing. But I think यहाँ पे तो मैंने कुछ और ही discover कर लिया है कि अच्छा, मतलब एक इंसान के अंदर इतने सारे लेयर्स हो सकते हैं कि बिसाइड जस्ट बीइंग प्रोफेशनली 1000% यू आर गिविंग एवरी डे, बट ये भी बैलेंस करके चलो तो अपने शौक भी पूरे हो सकते हैं. सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन एक बात बोलता हूँ, जब आप प्रोफेशनली अच्छा कर रहे हो या रिपीटेटिव काम कर रहे हो ना, तो वो आपके बैक ऑफ द माइंड में चला जाता है. अब मेरे लिए सर्जरी या पेशेंट देखना मेरे लिए काम है, लेकिन वो एकदम सेट हो चुका है, वो फिक्स है, वो चल ही रहा है, मतलब, और चलता ही रहे. ऑब्वियसली दैट इज द बेसिक ऑफ लाइफ. लेकिन वो उस लेवल पे सेट हो चुका है कि उसके लिए मेरे को बहुत ज्यादा माइंड स्पेस नहीं देनी पड़ती है. जो लोग नहीं समझते हैं, ये लोग यही बात नहीं समझते हैं कि यार आप डॉक्टर हो दिन भर, तो अरे पर ठीक है, वो तो चल ही रहे ना काम. हजारों सर्जरी हम कर रहे हैं, लाखों पेशेंट देख रहे हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है. मतलब यही है, घुटने दुख रहे हैं बदलने, या कमर दुख रही है दवाई देनी है, वो एक रिपीटेटिव काम है, उसमें कोई नयापन नहीं है.
और आप इतने Correct. प्रोफेशनली करते 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 यू आर सो हार्डन्ड अप एंड Yeah, वो इतना रूटीन में आ जाता है कि वो हमारे माइंड की स्पेस को बिल्कुल नहीं छेड़ रहा है अभी. एंड यू हैव टू रीच दैट लेवल. कोई भी आपका प्रोफेशन हो ना, आई वुड वांट टू से कि इतना आप उसमें टाइम दो, सुपर स्पेशलिटी जो भी हो, तो क्या वो इंस्टिंक्टिव लेवल पे आ जाए आपके, करेक्ट, कि कि नींद उसमें में आपको, भी आप बता दो 3 बजे हाँ, कि तो ऐसे फिर ये आपको होना उसमें है. ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं. आपका बिजनेस चल रहा है, जो भी चल रहा है, आपने यू हैव वर्कड हार्ड ईयर्स एंड ईयर्स. अब वो एक सेट हो गया, अब उस लेवल पे आ गया. ऑफ कोर्स आपको ध्यान देते रहना पड़ता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेजरली ध्यान नहीं देना पड़ता, बीच बीच में उसको थोड़ा बहुत करते रहना पड़ता है. एंड इट गोज ऑन एंड गोज ऑन. तो अब आपका दिमाग फ्री हो गया, तभी तो मैं इतने सारे काम कर पा रहा हूँ. अगर मैं उसी में करेक्ट. स्ट्रगल कर रहा होता, वही मेरा हाँ. सेट नहीं होता, या मेरे को सर्जरी नहीं आती होती, हर बात में डर लग रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो फिर मैं गजल राइटिंग ये सब कहाँ कर पाता. हाँ. तो जब आप सेट हो जाओ बहुत अच्छी तरीके से, रीजनेबली, तब आपको फिर आपके ये हेल्दी लाइफस्टाइल एंड हॉबीज इनमें जाना चाहिए. Tell me one thing, do you agree कि जब, जैसे example, when I used to, I still work in a 9 to 5 job while I'm still Yeah. doing this. I enjoy this process of Yeah. talking to people, learning more things from them, क्या सोचते हैं, क्या किस तरह की सोच है. And then you feel fulfilled कि कुछ अच्छा किया. Again, सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है. Yeah. तो ये बात सही है कि प्रोफेशनली आप जो करो, जरूरी नहीं दैट मस्ट बी द पर्पस ऑफ योर लाइफ, बट ऑल्सो डू समथिंग रियली. यही जरूरी है. something- मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मेरे को बहुत ही क्लीशेड लाइन लगती है कि ना आपका प्रोफेशन ही आपकी लाइफ होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए. मैं उससे बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी अग्री नहीं करता हूँ. वरना तो लाइफ बहुत ही आपकी कलरलेस हो जाएगी. आप दिन भर जो काम कर रहे हो, फिर उसके बाद तो आपको कुछ और चाहिए ना. तो वो मैं तो बिल्कुल मानता नहीं हूँ. हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि आप जो जैसे बड़े स्टार्स हैं, क्रिकेटर्स, उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है टू परस्यू समथिंग, लेकिन वो भी आप उनके वीडियोस या देखोगे तो क्या, आई लिसन टू म्यूजिक, आई रीड, मतलब कुछ ना कुछ उसको भी तो, वो उसके लिए काम है. हमारे लिए एंटरटेनमेंट है, उसके लिए वो काम है. तो उससे फ्री होके वो कुछ तो करना चाहेगा इंसान. लोग कई तो बार influence प्रोफेशन हो तो जाते आप, हैं. या प्रोफेशन आपकी लाइफ होनी ही नहीं चाहिए. हाँ. ऑफ कोर्स सी, लाइफ के 3 पिलर्स हैं एज आई सी. 1 पिलर इज योर प्रोफेशन, वो आपको अच्छे से करना ही चाहिए, उसमें एडिक्वेट टाइम देना ही चाहिए, लेकिन कब तक, हाउ मच इज टू मच, एक समय तक. सेकेंड पिलर इज योर फैमिली, ऑब्वियसली, वाइफ, बच्चे, दोस्त, कलीग्स, मतलब उनको भी टाइम देना चाहिए. एंड थर्ड पिलर इज यू एज अ पर्सन. आपको क्या अच्छा लगता है. और ये भी हमारे सोसाइटी में बहुत क्लीशेड चलता है, अरे आप तो डॉक्टर हो, आप यहाँ घूमने चले जा रहे हो, आप बुक पढ़ रहे हो, आप गजल पढ़ रहे हो. लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, सिर्फ काम ही करना चाहिए. इवन आई नो मेनी डॉक्टर्स. जब मेरी बुक लॉन्च हुई ना, 3-4 डॉक्टर आके ऑलमोस्ट रोने जैसे हो गए मेरे पास में कि आपको देख के हमको समझ में आया, हम भी ऐसा करते थे, पर हमने सिर्फ पैसे और उसके पीछे अपने छोड़ दिए, नाउ वी आर रिपेंटिंग. वो एक सोसाइटी की बनाई हुई, उसमें चले जाते हैं कि इसी तरह लाइफ हमको जीनी है, इतना ही पैसा कमाना है, इतना ही काम करना है. कुछ और कर रहे हैं तो सोशल टैबू है ये तो, कि डॉक्टर ऐसा कैसे कर सकता है, या ऐसा नहीं होता है. आपका you are many parts, you are made up of many parts, family life, professional life, then your personal life. तो वो तो उसके बिना आपकी लाइफ अच्छी हो ही नहीं सकती. ठीक है, डिग्रीज माइट वेरी. कभी आपने प्रोफेशन ज्यादा कर लिया तो फैमिली लाइफ थोड़ी कम हो गई, वो कम हो गया, फिर वो ज्यादा हो गया, फिर ये कम हो गया. यू कैन प्ले अराउंड द थिंग्स, लेकिन तभी आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हो, ना नहीं जी सकते. To have more colorful life, to have more emotionally balanced life. हाँ, हर चीज होनी चाहिए. पैसा भी एक चीज है, आपके शौक भी एक चीज है, फैमिली भी एक चीज है, प्रोफेशन भी एक चीज है. सबका मिक्सचर होना चाहिए टू वेरिंग डिग्रीज, और वो भी चेंज होता रहता है. ऐसा नहीं कि स्टैटिक. इट्स अ वेरी फ्लूइड, वेरी, और यही लाइफ का मजा है कि अभी चलो मैं प्रोफेशन रोबोट लिया, अब मैं जर्मनी जाने वाला हूँ एक रोबोट की कॉन्फ्रेंस में, तो थोड़े दिन तक प्रोफेशन ही आगे रहेगा. फिर अभी मेरी बुक लॉन्च हुई थी तो गजलों में घुसा हुआ था, फिर एस्ट्रोनॉमी में आ गया, कभी बच्चों के साथ जा रहे हैं. तो कुछ ना कुछ लाइफ में चल रहा है ना अपने. तो एक जैसे मोनोटोनस लाइफ नहीं है. यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन. बड़ा मजा आया. आपको मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं हिमांशु बोलूं कि आपके घर के नाम से बोलूं. इट्स डिफिकल्ट फॉर मी, बट this is a professional platform, and I obviously feel like there is so much that I've learned from you, and I feel like आगे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. And ये तो सिर्फ surface level पे हमने touch किया, as you just said, कि ये तो सिर्फ surface level पर है. There is so much. So of course we will speak more. We will obviously invite you on their emotions as much as possible, so हम और जान सकते हैं about your personality and about perspective that you have in life. Sure. Definitely. Thank you so much for being part of Dear Emotions. Bye. Thank you. Thank you.